वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिला आदिलाबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया और उन्हें तहनीत पेश की। वज़ीर आज़म मोदी आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज़ायद के मालियत के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के लिए पहुंचे थे। ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के आज एक बड़े ऐलान तेलंगाना की धरती से आपको नजर आएंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना श्री ए रेवंत रेड्डी गारू टू फेलिसिटेट आवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर विद एन अंगवस्त्रम। May I also invite the Honorable Union Minister Shri G. Kishan Reddy Garu to felicitate our Honorable Prime Minister with an Angavastram. As a token of our love and appreciation, may I now request Kishan Reddy Garu to present a memento to the Honorable Prime Minister. हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारक रामाराव ने कहा है कि इस माह की 6 तारीख को रियासत भर में बीआरएस धरने देगी। उन्होंने कहा कि एलआरएस स्कीम को मुफ्त नाफिज करने का मुतालबा करते हुए ये धरने दिए जाएंगे, जिसमें बीआरएस के कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में हिस्सा लेंगे। నీళ్లు లేక పంటలు ఎండుతా ఉన్నాయి, మరొక వైపు రైతు కుటుంబాలు గాని దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాలు గాని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాయి। కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ, ఉచితంగా ఎల్ఆర్ఎస్ ను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, గతంలో ఈ మంత్రులు మాట్లాడిన మాటలు వారికి గుర్తు చేస్తూ 6వ తారీఖు నాడు, ఈరోజు 4వ తారీఖు, 6వ తారీఖు నాడు అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్ లో హెచ్ఎండిఏ కార్యాలయం దగ్గర, అదేవిధంగా జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం దగ్గర, హైదరాబాద్ కాడికేమో హెచ్ఎండిఏ జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం, మిగతా అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ధర్నాలకు పార్టీ పిలుపునిస్తా ఉంది। ఇది మరి ప్రజలు కూడా మాతో కలిసి రావాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। ఎవరైతే 25,44,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయో, దీనివల్ల నష్టపోయేవారు, దీనివల్ల ఇబ్బంది పడేవారు, వారందరూ కూడా మద్దతు చెప్పాలని చెప్పి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। 6వ తారీఖు నాడు वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एमसीआर एचआरडी में किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। गवर्नर पेट से गवर्नर हाउस तक नामी ये किताब साबिक डीजीपी राम मोहन राव ने तहरीर की है। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा दूसरी बोली जाने वाली ज़बान तेलुगु है। कौमी सतह पर हमारी ज़बान को दूसरा दर्जा हासिल है, मगर सियासत में भी हमें इसी तरह का असर छोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सियासी फैसलों में हमारे इश्तराक की ज़रूरत है। రామ్మోహన్ రావు గారి పుస్తక ఆవిష్కరణలో మీరందరూ పాల్గొనడం, ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ముఖ్య అతిథిగా వారు ఆహ్వానించడం ఒక మంచి అవకాశంగా, మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి నాకు ఇది ఒక మంచి సందర్భం అని నేను భావిస్తున్నాను। ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నవాళ్ళు కానీ అక్కడ ఆసీనులైన వాళ్ళు స్వాతంత్ర సమరాన్ని చూసిండ్రు, తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని చూసిండ్రు, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ రాష్ట్ర
అవతరణ పరిపాలన చూసిండ్రు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్, రెండు రాష్ట్రాల కలయికతో ఏర్పడ్డ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిపాలన చూసిండ్రు. 69 తెలంగాణ ఉద్యమం, 72లో జయాంధ్ర ఉద్యమం, మళ్ళీ 96లో రెండవసారి తెలంగాణ ఉద్యమం, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ. దాదాపుగా ఈ 76 సంవత్సరాలలో జరిగిన వివిధ పరిణామ క్రమాలను అన్నింటినీ అవగాహన చేసుకొని అనుభవం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం ఇది ఒక మంచి సందర్భం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని, ముఖ్యంగా తెలంగాణ పోలీస్ అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడాన్ని వారిని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. वीरा शिवलिंगय्यत कारपोरेशन के क़याम के लिए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेटकर की क़यादत में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो इस मामले को वज़ीर आला के इल्म में लाएंगे। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। వీరశైవ లింగాయత్కు సంబంధించిన అధ్యక్షులు సంగమేశ్వర్ గారు, అదేవిధంగా మా మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు మిత్రుడు మా అన్న సురేష్ షెట్కార్ గారు, మిగతా కార్యవర్గ సభ్యులందరూ కూడా వీరశైవ లింగాయత్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయమని రిప్రజెంటేషన్ చేసినారు. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొని పోయి 100% విశ్వాసం ఇస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా వీరశైవ లింగాయత్కు సంబంధించిన కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామనే మాటను హామీ ఇస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత మాది. ఈ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో బీసీ శాఖ మంత్రిగా, సురేష్ అన్న మిత్రుడిగా, సంగమేశ్వర అన్న తమ్ముడిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామనే మాట మనవి చేస్తూ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. अवामी मसाइल की यकसुई के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस ने प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के मौके पर आवाम ने मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगियाँ की। महबूबनगर लोकल बॉडी हल्के के MLC ज़िमनी इंतखाब का आज एलामिया जारी कर दिया गया। आज से 11 मार्च तक पर्चा नामजदगियाँ वसूल की जाएंगी। 10:30 बजे दिन तक 3 बजे से पहर महबूबनगर ज़िला कलेक्ट्रेट में पर्चा नामजदगियाँ कबूल की जाएंगी। 12 तारीख को पर्चा नामजदगियों की जांच की जाएगी। 14 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 28 मार्च को रायदही होगी और 2 अप्रैल को वोटों की गिनती की जाएगी। पुलिस ने जिला नीलूर में तेलुगु देशम लीडर विजेता रेड्डी के मकान की तलाशी ली। पुलिस ने इंतखाबात में इस्तेमाल के लिए रकम के छुपा कर रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए ये तलाशी ली। तेलुगु देशम MLA कोटम रेड्डी ने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मुनशियात मामले में अदाकारा एल गणेश गच्ची बोली पुलिस के सामने हाजिर हुई। पुलिस ने मुनशियात मामले की तहकीकात में शिद्दत पैदा कर दी है। इसी के हिस्से के तौर पर अदाकारा को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। अदाकारा के खून के नमूने हासिल किए गए। छोटे बच्चों के जनखों और भिखारियों की जानिब से अगवा की व्हाट्सएप पर झूठी इत्तला के बाद विकाराबाद में वाल्मीकि कॉलोनी के रहने वालों ने जनखों पर हमला कर दिया। इस वाक़े में जनखे जख्मी हो गए। इस सिलसिले में तांडूर पुलिस से शिकायत की गई। वाले नहीं है भैया, हम निकले हैं, बोले तो हम पुलिस स्टेशन में भी बात।
महबूबाबाद जिले में हालत नशे में बाज अफराद ने बिरयानी सेंटर पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, ताहम इन अफराद ने पुलिस से बहस और तकरार की और पुलिस पर हमले की भी कोशिश की। पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। वनपर्ती जिला में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 5 अफराद बशमूल 3 बच्चे हलाक और दीगर 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कुतकुटक के करीब कौमी शाहरा नंबर 44 के करीब आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक कार में सवार अफराद कर्नाटक के बेलारी से हैदराबाद वापस हो रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। निजामपेट के बाचूपल्ली में एक मुश्तबा शख्स ने मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो मामूली तौर पर जख्मी हो गया। ये मुश्तबा शख्स मकान में दाखिल हुआ। मकान में रहने वाली खातून ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसके साथ ही इसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। महाराष्ट्र के धुले जिले के एक गांव में तेंदुए का सर घड़े में फंस गया। ये तेंदुआ जंगल से एक गांव के एक मकान में दाखिल हुआ और पीने के लिए इसने अपना सर घड़े में डाला। जैसे ही इसने अपना सर डाला, ये सर उसमें फंस गया। इस वाक़े की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर चीते को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और बादअज़ां इस घड़े को काट कर चीते को वहां से बचा लिया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता माह कस्टम के ओहदेदारों ने 28 मामलात में 13.65 किलो सोना जब्त किया। यह सोना पेट, मिकद, हार्डवेयर टूल्स, चेन, लगेज वगैरह में छुपा कर लाया गया था। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए शौहर ने उसका कत्ल कर दिया। ये वारदात जिला विकाराबाद में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के देवी नैनी गुड़म में रहने वाला प्रवीण नामी शख्स अपनी बीवी के किरदार पर शुबा किया करता था। इसने लाठी से अपनी बीवी प्रमीला पर हमला कर दिया। इसको रिश्तेदारों ने शदीद ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए विकाराबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। लारदोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement,
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद